ਚਾਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵੀਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ। आपकी दिक्कत तो चलो आप नहीं आ सकी कुछ टॉपिक को लेके, लेकिन जो भी 1 2 3 किया है आपने तो कुछ कुछ दिक्कत जैसी लगी कुछ किसी तौर पे? नहीं पास्टर जी, मुझे इजी लगा था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक किए थे जो करने थे, थोड़े टफ थे मगर मैंने अभी ये किया है कि कंटिन्यू करना है, उस चीजों को सीखना है क्या थे जैसे आप भेजते थे मगर मेरी इतना नहीं था कि मैं सीख सकूं क्योंकि उनको। ओके, थैंक यू। सिस्टर कमलजीत, आपका एक्सपीरियंस जी पास्टर जी। क्या? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ 4th ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਈਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ 3rd ਸਟੇਜ ਔਰ 4th ਸਟੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਟਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਡੀਪ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ 4th ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਮੇਨ। ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੇਜ करना, ਹੋਰ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक टॉपिक लंबा इसलिए है ट्रांसलेशन को लेके ना, अगर ये ट्रांसलेशन नहीं होता था तो फिर टॉपिक छोटे होते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरूरी है कि जब आप जूम पे आते हैं तो आप कोशिश करो स्नान करने को, फ्रेश हो जाएंगे आप, कोशिश करो चाय या कॉफी पियो
ताकि और भी काफे अंदर जाएगा तो फिर ये भी आपको जगह अब चतुर होंगे और सोने एक्टिव होंगे, सोने को नहीं जाएंगे। ये आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि पूरा दिन आप लोग काम कर रहे हैं और फिर रात को ये टॉपिक्स लग जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही दिक्कत ज्यादा होगी लोगों की, पूरा दिन काम करते हैं फिर और 1-1.5 घंटा 2 घंटा कभी हेल्प मी तो यही हो सकता है दिक्कत होगी कि कोई लोगों की। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करो आपको ही हेल्प करने को। अगर टॉपिक के दौरान अगर थोड़ा सा खड़े हो जाओ और बॉडी हिलाओ ताकि आप फ्रेश हो जाएंगे, ये बॉडी हिलाओ तो आपका मैं तो पास्टर जी हेल्थी रहती हूँ। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों में फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। अगर आप ऐसे बैठ के देखेंगे ना तो फिर रजवीर का जैसा आप सोने को जाएंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हालेलुया। तो हाँ, पूजा। प्रेज द लॉर्ड ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਜ 4 ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬੇ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਟਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟੇਜ 4 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਕ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ 2 ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈंने ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੌਰਾਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈंने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, अच्छी बात। सनी भाई। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ 4 ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸਰਮਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਓਕੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਸ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਟ ਹਿੱਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਟਾਂ, ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਟੇਜ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਲਈ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਤਾਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਸਾਥੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੌਨੀ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਡਿਆਗੋ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜੌਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਜੌਨੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫॉर ਮੀ ਫॉर श्योर ਕਿ ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਨਾ। ਚਲੋ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਇਰਡ ਹੋਈਏ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਵਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਇੱਛਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰੀडम ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਗਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਈਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਭਾਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ कि उसने इस चीज ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ है। हालेलुया। आमेन आमेन। आप बोल रहा था सब फ्री है, नहीं है, सबका बिल रेडी कर रहा मैं, आपको भेजूंगा मैं। फिर सही है, फिर सब अच्छे से करेंगे भी भैया। सही है। निशा, ਜੈਮ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਜ 4 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 4 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 1 ਵੀ ਕਰ ਲਈ, 2 ਵੀ ਕਰ ਲਈ, 3 ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ 4 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਟੇਜ 4 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ, ਜੋ ਸਟੇਜ 1, 2, 3, 4 ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਸਟੇਜ 4 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਗੇ ਦਾਊਦ, ਸੁਲੇਮਾਨ,
ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਟੇਜ 4 ਤੋਂ। ਔਰ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੇਜ 4 ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं, ਉੱਦਾਂ मैं ठीक है सब कुछ। सही है। अगर शॉर्ट करेंगे तो फिर आप लोग सही नहीं सीखेंगे ना, तो जो गला जो करने का है वो करने का है जरूरी है। तो आप लोगों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, शावर लेके कॉफी लेके कुछ ना कुछ करो, झटका दे दो आपके लिए, ताकि फिर आप जगे होंगे जैसा स्टेज 4 करेंगे। पता सिस्टर नहीं रंजी, वैसे जी जो हाँ पिछले स्टेज मन टॉपिक लगा यार, मैं शायद मैं सौ गई थी उस हाँ जी पास्टर जी, हम पूछिए फीडबैक जाए। के दौरान सो गई थी। सो गई थी। हाँ लास्ट टॉपिक जो हुआ है वो आपने किया सही तरीके से, क्योंकि अमनदीप सही ने तरीके मुझे से क्या पास ही मुझे सभी क्वेश्चन आंसर आते थे, पर मैं सो गई थी, लास्ट हाँ में सो गई थी 5 लास्ट मिनट में के सो गई थी। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी वैसे ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, 10-12 ਜਾਣੇ 15 ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ 4 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਟੇਜ 2 ਵੀ, ਸਟੇਜ 1 ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੁਅਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਕੁਅਲੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। आमेन। ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ 3 ਦੇ, ਸਟੇਜ 2, ਸਟੇਜ 1, ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ 1-2-3 ਟੌਪਿਕ।
ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 40 to 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਗਰ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ चाहूंगा आगे। जय मसीह। थैंक यू। हाँ, किसी ने सनी बोल रहा था ना, बहुत टाइम लगा के ये सब बैकग्राउंड में बहुत काम होता है। मुझे याद है सिर्फ जो डिलीवरेंस का जो टॉपिक है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसका ही मैंने गिनती रखा, कितना मैंने मेहनत डाली, कितना मेरा टाइम गया। तो ये 3 टॉपिक्स को लेके, ये लंबे हैं टॉपिक्स, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन जूम पे नहीं लगाएंगे, वो हम चर्च में लगाएंगे, चर्च के बाद। तो मैं बताऊंगा आपको कब लगाएंगे, ताकि फिर वो आप मिस नहीं करेंगे। खास करके सिस्टर कमलजीत कभी कभी नहीं आती है, तो फिर उसको फिर उस संडेस को पक्का आने को, फिर उसको काम करना पड़ेगा उस चीज पे। तो 3 टॉपिक के लिए डिलीवरेंस का टॉपिक जो हुए हैं, तो मेरी पढ़ाई, लिखने का, फिर सफर, ट्रांसलेटर के पास जाने का, फिर प्रचार करने का ट्रांसलेट को लेके, ये 3 टॉपिक का टाइम मैं बताऊंगा। अगर कोई भी सही टाइम लगता है सनी को पता होगा, तो सनी नहीं चाहिए मुझे। अगर आप में से कोई भी मुझे बताएगा, हो सकता है मैंने ये गलत की है, अगर चलो तो कुछ ना कुछ मिलेगा आप मेरे बोलो। हो सकता है मैकडोनल्ड्स का करना पड़ेगा लगता है। तो 3 टॉपिक क्या, कितने घंटे लगे बताओ मुझे, ये सब चीजों को लेके, तैयारी, सफर, प्रचार, अपलोडिंग का तो अलग वो नहीं, सिर्फ यही 3 चीजें करने को, तैयारी, लिखने को, फिर प्रचार, सफर, जाने। क्योंकि ट्रांसलेटर जो है ये मेरे कॉल नहीं है, वो दूर रहते, तो उनको उसके घर जाना पड़ता है, और ये आने का भी टाइम नहीं मैंने ये किया, सिर्फ जाने का ही टाइम। कितना लग गया लगता है आप लोगों को? 3 टॉपिक से ये अंदाज से कौन बता सकेगा? पूजा आप म्यूट पे है। मैंने कहा पास्टर जी घंटे तो नहीं लगे, दिन लगे होंगे, 1-2 घंटे में। दिल की तो बात तो अलग है, लेकिन घंटे की अभी जो प्राइस जो मिलने वाला है वो घंटे के हिसाब से मिलने वाला है, दिल को लेके नहीं। पास्टर जी एस्टिमेट लाकर चलो हम लगा देंगे, जैसे 4-5 घंटे तो होंगे आप। या बैकअप करने के लिए 3 टॉपिक का
मेरे हिसाब से सिर्फ तो नंबर 12 बताओ, घंटे एक्सप्लेन मत करो, नंबर बताओ। 12 घंटे। ओके 12 घंटे। हमारी कमलजीत कितना घंटे? 4-5 घंटे तो एक टॉपिक के लिए होंगे। टोटल बताओ। टोटल तो 3 टॉपिक, 4 3 12 से 15 घंटे। 12 से 15। ओके, और कोई चाहेगा? 15 15 और 15 से 16 घंटे होंगे, क्योंकि वो वीडियो भी लंबी होगी और आप जैसे आपने कहा 2 और 3 घंटे की, तो ऑब्वियसली वो हाँ, सिर्फ ज्यादा नंबर होंगे। नंबर बताओ, एक्सप्लेन मत करो। 15 और 16 घंटे। 20 to 22 hours। ओके, बख्शीश को प्राइज मिला, बख्शीश को मैकडोनल्ड्स में लेके जाना पड़ेगा। 20 घंटे लगे मुझे ये 3 टॉपिक्स को लेके, प्लीज वाली 20, नाल ले जाओ। क्योंकि बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तैयारी करता हूँ मैं। बख्शीश में थोड़ा फिर तेरे नाम सीगा लिख 50 घंटे मेरे पास। हाँ, तो एक बख्शीश एक पीस मैकडोनल्ड का मिलेगा निशा को और आपको। चलो ओके, अभी और किसकी बारी है? रंजीत। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी। सबसे पहले तो आपका और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए साइप्रस में आपको भेजा और आपने यहाँ पे आके हम पंजाबी कम्युनिटी को इकट्ठा किया। धन्यवाद है उसके लिए परमेश्वर का और आपका भी। और जब मैं स्टेज 3 में थी, तब भी मेरे को आप वीडियो भेजते थे पर्सनली। तो उस दौरान भी मतलब जब मैं वीडियो देखती थी तो मुझे मतलब थोड़ा इतना समझ में नहीं आती थी वीडियोस। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से मैं स्टक हो गई। लेकिन फिर आपने और परमेश्वर ने आपको दिया, जो भी आपके मन में आया कि आप हमारे लिए ईज़ी करो। फिर आपने वो ग्रुप स्टार्ट किया, तो मैं उसकी वजह से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि मैं वो स्टेज थी अपनी कंप्लीट कर पाई। फिर उसके बाद हमारी स्टेज 4 की बारी आई। तो उस वक़्त जब हमारी मीटिंग हुई तो आपने हम सबको सारी बातें समझाई। तो उस वक़्त लगा था कि बाप रे! सचमुच में अब कुछ बहुत भारी कुछ आने वाला है ना? तो फिर आपने हमारी फिर से हम सबकी हेल्प की और जैसे बख्शीश पाजी ने बताया कि सचमुच में हाँ, हम लोग जब इकल्ले देखते हैं तो इतना हमें नहीं समझ में आ पाता। आता भी है लेकिन नहीं भी आ पाता समझ। लेकिन जब आप हम लोग ग्रुप में होते हैं, है ना? और जब हम वीडियो देखते हैं इतना मतलब एन्जॉय करते हैं उसको। और जैसे मान लो मुझे कोई आंसर नहीं आ रहा, निशा ने दे दिया, रवीना ने दे दिया या सनी वीरे ने दे दिया, तो वो हमें उस चीज़ को बहुत आसानी से मतलब कि हम लोग उस चीज़ को कैच कर पाते हैं। भी हाँ, इस जो ये पूछा गया इस टॉपिक में वो हमें समझ में आ जाता है। तो सचमुच में इसको हम बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। कई बार तो ऐसे सच में लगता है कि वाह! सच में वीडियो बहुत लंबी है, क्या होगा क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करके परमेश्वर की हज़ूरी में, तो सचमुच में वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चलता और बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो जो हमारा टॉपिक है, वो हमारे दिमाग में कब घुस गया, हमारे दिलों में कब घुस गया और वो क्वेश्चन आंसर्स के कब हमने एक-दूसरे को समझा दिया। और सचमुच में मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है परमेश्वर का धन्यवाद है और आपका थैंक यू बहुत-बहुत। और मेरे सब भाई-बहनों का थैंक यू है जो हम एक-दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि मेरे 2 जो फ़ेवरेट टॉपिक है इस अब तक के दौरान, एक तो प्रचार का डिलीवरेंस ऑफ प्रीचिंग और टीम वर्क। तो सचमुच हम वो सब कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है पास्टर जी। इस मतलब कि ज़ूम मीटिंग टॉपिक के दौरान ये हो आमेन। रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच और आपकी बेटी के लिए एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे पास्टर जी। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। रवीना। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब नु। जय मसीह की सर। जय मसीह दी। मैं मेरा म्यूट करता हूँ क्योंकि हाँ इधर ओके आवाज आ रहा है, इसलिए अभी सॉरी। अभी हाँ। ओके। जो स्टेज 4 में ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 4 ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ 3 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਟੇਜ 4 ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 4 ਚ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸਟੇਜ 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 4 ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆ ਸਟੇਜ 4, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟੇਜ 4 ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਵਿੰਗ ਬਾਏ ਫੇਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਧਿਆਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ दो बारी पढ़ी पढ़ा था। रवीना, आपका आवाज नहीं आया जो अभी गल की है। ओके सर, आई थिंक इंटरनेट इशू हो रहा है, एक सेकंड। स्टेज 4 भारी है ना, तो इंटरनेट को भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी आप सुन पा रहे हो मुझे सर? हाँ जी। यस। हाँ, तो मैं शुरू से शुरू करूं या मैं बोलूं अभी? नहीं, जो लास्ट गल की है शुरू से नहीं। हाँ, तो मूविंग बाय फेथ में मैंने जो सीखा कि हमें कैसे विश्वास से आगे बढ़ना है। और उसके बाद मेरी जर्नी आगे चलती रही, जैसे वो वीडियोस आते हैं हम सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वो वीडियो हमें पहले ही मिल जाती है और हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह होमवर्क करके आते हैं। मैं तो लिख के आती हूँ वीडियो पहले ही और परमेश्वर गाइड करते हैं और प्रेयर भी करती हूँ मैं आने से पहले कि परमेश्वर हम सबको अच्छे से गाइड करे, जो सीख पाए जो आप सिखाना चाह रहे हैं उस वीडियो से हमें। और इसमें जो टॉपिक है बहुत हैवी टॉपिक भी है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर पार्ट 1 पार्ट 2। और अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया है हमें आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना है। और एक टॉपिक है इसमें गॉड कैन ट्रेन अस टू लीड, ये अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। तो वो टॉपिक सच में हम कभी ना कभी बहाने लगाते हैं मुझे नहीं करना है। तो ऐसा हुआ उन्हीं दिनों जब वो टॉपिक लगना था। तो परमेश्वर ने सिखाया इस टॉपिक के दौरान कि हमें बहाने नहीं करने, अगर उसने हमें बुलाया है तो वो हमें आगे भी लेके जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है और आपका भी Amen. जो हमें अच्छे से लीड कर रहे हैं। और बहुत सख्त फूड है, हैवी है और जो टॉपिक हमने कर लिए है उसके लिए भी धन्यवाद आपका हिंदी में। और कोई गल नहीं, थैंक यू। कोई गल नहीं, खुदा का और धन्यवाद। जो आगे टॉपिक आएंगे उनके लिए भी हम रेडी हैं, परमेश्वर हमें रेडी। थैंक यू सर। आमेन आमेन। थैंक यू गीता। जय मसीह दी पास्टर जी। जय जय मसीह। मसीह दी साहब नु। पास्टर जी, जब मैं ये स्टेज 1 और 2 मैंने किया तो वो थोड़े थोड़े इजी लगे, हौली हौली मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं स्टेज 4 पर आई तो मैंने सोचा इतना डिफिकल्ट होंगे तो मुझे समझ में नहीं, पहला टॉपिक नहीं मुझे समझ में आया तो उसके क्वेश्चन भी मुझे नहीं समझ आ रहे थे। तो मैं दुआ प्रार्थना में भी थी, तो मैंने अमन मट्टू को कहा, मैं कहती मुझे तो बहुत टफ लगा, मैं कैसे करूंगी वो। तो हौली-हौली जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, पहले जैसे हम टीम वर्क, जैसे दी ने कहा है, रंजीत दी ने, कि हम टीम वर्क के साथ हमें बहुत कुछ ईज़ी हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमें मुझे कई बार क्वेश्चन नहीं समझ आता था, या आंसर नहीं आता था, तो वो हेल्प मिली, दूसरे पर्सन जो बोल रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरी आत्मिक जीवन है, जो आत्मिक होली स्पिरिट आ, बहुत कुछ अगे बढ़ी है मैं। ते कई वाले तो मैं बहाने ला देंदी सी। मैं खुदा तो माफ़ी माँग चुकी हैं। एक बार मेरे साथ हुआ, मुझे प्रीचिंग के लिए कहा गया तो मैंने बहाना ला दिया, मैं बहुत डर गई थी। बट खुदा की जो योजना है सब तो उत्तम है, जो कलाम में लिखा है। जब मैं लास्ट संडे प्रीचिंग में गई, मैंने मूसा की तरह बहाने तो बनाए, तो खुदावंद कह रहे महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, खुदावंद ने कहा चल आ जाओ। तो वो परफॉर्मेंस जो थी स्टेज पर, मैं इतनी शॉक हो गई थी, मैं खुदावंद ने मुझे कहाँ पर इस्तेमाल किया, खुदावंद का धन्यवाद। ते बहुत कुछ मिला प्रभु से, वचन के द्वारा, जैसे हमें कैसे लोगों से गलबात करनी है, जो नए लोग आते हैं, पहले उनकी बात सुननी है, तो फिर उनको हम निम्रता में हमें रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हमें वो भी छोटी हो, बड़ी हो, उसको कभी भी ना नहीं करना है। तो मेन मोटिव ये भी है जो हमें टीचिंग करनी है, जब मैं के द्वारा नहीं करनी, असी के द्वारा, किसी पर लाकर नहीं करनी,
जब हम ब्रीचिंग भी करते हैं कि सब हमारा आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। ते जब हम इवेंजलिज्म के दौरान जाते हैं तो जो अपनी गवाही है टेस्टमनी शेयर करनी चाहिए उनके साथ और उनको पर्सनल टच में रहना चाहिए। तो हमें कैसे डील करना है हर एक चीज़ में। हम जैसे जो टीम वर्क में हम बढ़ेंगे, रहेंगे, तो हमारा जो रिश्ता है, जो ग्रुप पर टीम वर्क है, वो आगे बढ़ेगा। जे हम उसके पीछे जाएँगे तो हमारा जो लाइफ है वो पीछे जाएगा, तो आमेन हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आमेन। तो हमें जैसे आपने बहुत टाइम दिया है हमें, जैसे आपने 2 घंटे वीडियो बनाते हो, तो खुदा का धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि खुदावन ने जो साइप्रस में हमें लेकर आए तो खुदा की क्या योजना थी। 2 साल पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, वो दुनियावी थी। मैं चर्च में ज़रूर आती थी, बट बिल्कुल भी मैं नहीं बढ़ पा रही थी। लॉकडाउन के द्वारा मैंने प्रार्थना सीखा, मैंने अल्फा के कोर्स किए, तो मैं बढ़ी हूँ, तो आज खुदा की तौर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, खुदा के द्वारा। और आपके द्वारा मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि स्टेज 4 से पहले जो मैं बाइबल पढ़ती थी, इतनी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। जब चर्च में भी लगते थे टॉपिक, कुछ भी आंसर समझ ही नहीं आता था, डामाडोल कर देती थी। बट आज इतना कुछ पता लगा वीडियो के दौरान, इतनी हेल्प मिली मुझे बहुत ज़्यादा कि इतना आपको मैं बता नहीं सकती कि जो कुछ मुझे नहीं पता था, मैं उससे भी आगे बढ़ी हूँ। तो मैं थैंक यू कहूँगी पास्टर जी आपका भी, तो आप हमें आगे लेके जा रहे हो। तो ऐसे ही हम अपने वफ़ादारी से आगे बढ़ें, ईमानदारी से। खुदावंद का भी धन्यवाद, आपका भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। कोई गल नहीं, खुदा के लिए महिमा। हाँ, सुना है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आप लोग अच्छे कर रहे हैं प्रचार, जिन्होंने भी अभी किया है अच्छी फीडबैक आ रही है। और मेरा मकसद है कि जब भी जो कर रहे हैं उनके साथ एक एक को काम को लगाने को, इवैल्यूएशन करने को। मुल्कानी सही है? जी, जी। हाँ, गुड गुड गुड, मैं सीख रहा हूँ मुल्कानी। तो ताकि फिर आप लोगों को हेल्प हो जाएगा कैसा किया आपने वचन को लेके, बॉडी लैंग्वेज को लेके, सब चीज़ों के लेके, डिलीवरी कैसी की। तो लास्ट जो फर्स्ट बैच था वो मैं भूल गया था, लेकिन सेकंड बैच गीता, पूजा और आकाश को इवैल्यूएशन का काम को लगाया था। लेकिन सोनू ने जो किया है और किसने किया था फर्स्ट संडे, कमलजीत ने, वो भी मैं कोशिश करूंगा फ्रंटलाइन टीम को बताने को कि उनको फीडबैक देने को कैसा किया उन्होंने, कुछ कमी थी ताकि फ्यूचर के लिए हम इम्प्रूव कर सके। और अगर आप लोग भी आपका प्रचार देखेंगे तो फिर आप भी उस प्रचार से सीखो, आपके एक्सप्रेशंस कैसी है, एक एक एक्सप्रेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर कोशिश करो नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करने को। तो मैं कभी कभी मेरा प्रचार देखता हूँ और मेरा प्रचार से मैं सीखता हूँ कि मैंने ये सही किया है, ये सही नहीं किया है, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। आपका ही प्रचार देखो और आप इम्प्रूव करो। हालेलुया। तो अच्छे कर रहे हैं आप लोग, और ये खुशी की गल है कि ये जो ट्रेनिंग जो हो रहा है वो इस्तेमाल होने के लिए लोड है ना। आमीन। अगर इस्तेमाल नहीं हो जाएगा तो फिर हमारा क्या फायदा, मतलब ये स्टेज 4 का क्या फायदा। थैंक यू और सर जोशुआ। हाँ, क्या बात? और एक बात कहनी थी, पेशेंस आप में बहुत है, आप किसी को छोड़ते नहीं हो, सबको आगे लेके जाते हो, इसके लिए बहुत थैंक यू। हाँ, कोशिश करता हूँ। यस, अभी भी मैंने नोट किया, पेशेंस बहुत है आप में, बहुत ज्यादा। तो ये चीज मुझे आपसे सीखनी है। पास्टर हाँ, जी पता क्या कहते हैं, सिस्टर जी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने चल ये काम करना है कि नहीं करना? नहीं पास्टर जी हमसे नहीं होगा, मैंने सिस्टर जी आपसे पूछा नहीं, आपको बताया है। चलो, सही अच्छी है। बात है। हाँ, इसलिए इवेंजलिज्म का लिस्ट भेजा है ना ग्रुप पे, कौन किसी ने मिस किया है तो अभी हाँ जी। वो हिस्सा आ रहा है, अब आ रहा है वो। जोशुआ रानी, फिर रेडी हो जाओ। नमस्ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ 4 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਗੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 100% ਪੂਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਚਲੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਅਲਫਾ ਕੋਰਸ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਔਖਾ, ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, और बहुत बड़ा फल आगे होगा। जय मसीह। आमेन आमेन। हाँ, फल चाहिए, नहीं तो बंदूक लेके आना पड़ेगा। रानी जय मसीह दी पास्टर जी। जय मसीह दी पास्टर जी, बहुत बढ़िया लगा है, सब मिल के कर रहे हैं जो स्टेज 4, ते मुझे भी थोड़ा सीखने के लिए मिल रहा है, सबको देख देख के, जो भी अपने ते कोई बुरा असर पड़ता है किसी का, तो आप खुदा के आगे प्रार्थना करके उसका जादू टूना किसी का कुछ नहीं कर सकता, जो अपने ऊपर खुदा का हाथ हो ना, उसकी प्रार्थना के वजह ना, तो भी अपने से दूर टाल देता खुदा। तो कोई भी कुछ चीजें ऐसी होंगी है जो अब आप वफादारी ना करते हैं, खुदा अपने करीब आने ही नहीं देता, तो जो मिल के करते हैं तो सब मुझे बहुत अच्छा लगता पास्टर जी। अच्छी बात। और कुछ? और कुछ नहीं पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस। क्या पास्टर जी कह रहे थे कि मैं कहना पास्टर थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चा ना, फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बताओ। पास्टर जी रानी कह रही है कि मैंने पार्टी को बताना, पार्टी मुश्किल होता है बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी खुशी होती है कि सारे भरा साथ दिंदे आ, ते सब मिल के मैनू को सिखण नूं मिलदा है, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। नहीं पर किते लगदा कि थोड़ा जिहा मुश्किल है, पर कहंदी जदों मैं पास्टर जी बनी वेहनी आ, तो ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ आमीन आमीन। ये अच्छी हाँ, परेशान कर देते हमें, अच्छा लगता है जब एक आदमी कभी खाना बनाते, कभी ना हमें क्यों करते हैं, हमें क्या तो होता है जैसे ने अपने को बोला है। थोड़ा सा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन आया सुनने को। हाँ, आप लोग मेहनत की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत का टॉपिक बहुत मस्त है, लेकिन देखो आप लोग देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम अगर रोल मॉडल है मेहनत का, तो फिर जो हमारे जो चेले जो है आप लोग सब, तो आप लोग भी सीखो कि उसी तरीके से मेहनत करने का, सही ना, ताकि और लोग भी बोलेंगे। आप जैसे आप लोग मुझे अभी बोल रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो हमें चाहिए कि फिर आपके जो नीचे जो लोग होंगे, जो स्टेज 3 कर रहे हैं, जो स्टेज 2 कर रहे हैं या स्टेज 1 कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को देख के वो भी बोलेंगे कि हाँ ये लोग देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, तो ये चाहिए हमें। चलो हम तो करते हैं, लेकिन आप भी सीखो और ज्यादा मेहनत करने को खुदा के लिए, सही ना। हाँ चलो, सब हो गया ना। पास्टर जी, जैसे हाँ सॉरी, नहीं, मजा जैसे करा, आप राजवीर बाकी है, बता बता पास्टर जी बताओ बताओ। हाँ जी, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और जो स्टेज 4 कर चुके हैं, उन्होंने फिर मेहनत की, और उनको देख के सचमुच में हमें हौसला मिला, क्योंकि वो लोग बताते थे
कि मतलब टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हैं, तो उनको देख के हमें भी हौसला मिला कि हाँ, अगर वो लोग अकेले-अकेले मेहनत कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो सचमुच हम एक-दूसरे को देखकर सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं, सचमुच में पास्टर जी। आमेन, आमेन। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, मैं नहीं भूल गया आपको। मैं याद था आपकी, आपको कैसे भूलूँगा हम? भूलेंगे हम। तो पास्टर जी सब कुछ बड़ा अच्छा था। सम टाइम मेरे को डिफिकल्ट होता है बिकॉज क्योंकि मेरा थोड़ा काम है ना, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा थक जाता हूँ। आज भी अभी काम की यूनिफॉर्म में हूँ तो मैं भूल गया था कि आज मीटिंग है, तो फिर मैं इसलिए रिलैक्स बैठा था, आपको रिकॉर्डिंग छोड़ रहा था, तो आपने बोला कि मीटिंग है, फिर मैंने देखा कि स्टेज पर मैं मीटिंग है तो मैं आया सॉरी। तो सब कुछ अच्छा था पास्टर जी, बड़ा अच्छा लगा। एक बार ना आपकी ना बात मेरी को बड़ी अच्छी लगी। टॉपिक खत्म हुआ, आप आए, सभी लोग रेडी थे कि क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं कि इसका ये है, इसका ये, इसका ये। आपने बोला कि क्वेश्चन आंसर छोड़ो, आप लोगों ने क्या सीखा वो बताओ। वो बड़ी चीज अच्छी लगी। मैं भी फुल रेडी था, मेरा भी लिखा हुआ था, रट रट कर लिखा हुआ था, ऐसे ऐसे करके बुक खोलेंगे और बताएंगे। पर जे एकदम से सब कुछ चेंज हो जाना कि तुमने क्या सीखा, वो कॉपी इधर रह गई और जो मैंने रिसीव किया मैंने, तो वो चीज आगे आएगी। तो वो बड़ी अच्छी लगी मेरे को कि सम टाइम कुछ होता है कि मैं कॉपी बनाने के लिए चला गया, मैं कुछ मैंने मिस कर दिया, पर मैंने दूसरा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो जब आपने पूछा, किसी भाई बहन ने बताया पहले, फिर मेरे को मालूम, हाँ ओके, ये भी था वीडियो में, ये भी था वीडियो में। सम टाइम हो सकता है कि ओ, मैं देख रहा हूँ वीडियो पर मेरा ध्यान कहीं और है, तो मैंने नहीं समझा। तो जब वो आगे वाला बंदा बताएगा, हाँ ओके ओके, इसके आगे ये था। कुछ वर्ड्स होते हैं कि हमसे नहीं लेके जाते और दूसरा भाई बहन बता देता है ना। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी वीडियोस भी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, आपने अभी भेजी आपने एक, तो मैंने देखी भी है वीडियो, मैंने जो आपने भेजी थी ना मेरे को, तो मैंने देखी भी है मैंने, जिसमें आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है आपने, जस्ट अपना। तो उसमें सिर्फ अपने बाइबल का सिर्फ एक वर्स लिया हुआ है अपने पतरस का। तो मैंने सारी वीडियो देखी, उसके अभी तक मेरे को क्वेश्चन आंसर नहीं दे हुए। देखिए पास्टर जी, मैं 2 बार उस वीडियो को देख चुका हूं मैं, उसके क्वेश्चन आंसर मेरे को नहीं दे हुए मेरे से, ठीक है। इसमें है कि चलो ऐसा होता है कि हमको इजी होता है, कुछ भाई बहनों ने बताया होता है, कुछ हम लोगों ने लिखा होता है, चलो लिखा हुआ छोड़ो। जैसे अभी अभी भाई बहन बता रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी जब सब बता रहे थे, तो मेरे को वो जो वीडियोस देखी हुई थी ना, वो दोबारा रिमाइंडर आ गया कि हाँ, टीम वर्क में पास्टर डाइगो ने कैसे बताया था। वो पिक्चर दिखाई थी कि जैसे अमन की कुछ है रॉन्ग है, तो वो अमन मट्टू और देविंदर ऐसे उसको कवर करेंगे, ऐसे करके वो पिक्चर के ऐसे वो सारा दिमाग से आगे घूम गया ऐसे कि पास्टर विकी पास्टर जी ने कैसे बताया था कि कैसे हम लोग टॉपिक को कैसे लेंगे, कैसा कैसा सब कुछ होगा। और आपका जो था कि अभी आगे लगा डिलीवरेंस का लगा था, कैसे आप प्रचार डिलीवर करोगे। तो वो चीजें थी कि सच में मेरे को मालूम नहीं थी। मेरा मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा था कि मेरे को हमेशा लगता था कि चलो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं हाँ, मैं भी कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बट उसके जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, उससे मेरे को मालूम पड़ा कि जो मेरा लाइफस्टाइल वो टीम वर्क में है, कि हो सकता है कि सबसे गलती होती है, किससे गलती नहीं हुई। जो यीशु मसीह के साथ में रहते थे, जिन्होंने उनको उनको मास डे में देखा है, जिन्होंने आंखों से, उन्होंने रॉन्ग किया। उन्होंने बाइबल में मैंने पढ़ा कि उन लोगों ने यीशु मसीह से सुना, वो भी रॉन्ग ले लिया था कहीं कहीं पे, तो कि हाँ यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि ये जिंदा रहेगा या ये मर जाएगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। कुछ थे कि उस हिसाब से कि बड़ा अच्छा, कुछ टॉपिक्स होते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आते, हम लोग भी चेंज लगते। सम टाइम होता ना, आपको मैंने वॉइस भी छोड़े थे 1-2 बार मैंने कि बस ये ऐसा था, ये ऐसा था, कि होता है कि आई थिंक जैसे अब बख्शीश ब्रदर ने बोला कि कुछ कुछ था कि पहले हुआ, कि कुछ हो जाता है। पर हम लोगों को जब हम एक दूसरे की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं, इसका ऐसे था। हर एक बंदा अपना अपना आगे रखता है ओपिनियन, तो फिर समझा था हाँ ओके ओके कि मैं रॉन्ग था, कि पास्ट ने इस वे से समझाया। जब मैं अकेला उसको समझूंगा, मैं उसको रॉन्ग वे में ले लूंगा, कि ये मेरा रॉन्ग वे है। वो
बड़ा अच्छा लगा कि सबका ओपिनियन आता है बीच में कि भैया ये ऐसे नहीं, हाँ हो सकता है ये ऐसे वे का हो और हम लोग बाद में बात कर सकते हैं इस पे, पर ये ऐसे वैसे भी हो सकता है। एक बंदा करेगा चलो रॉन्ग हो सकता है, पर 3 बंदे उस पे बोलेंगे, उसमें अपनी बात डालेंगे, तो वे उसका टेस्ट अलग हो जाता है। वो चीजें बड़ी अच्छी लगी मेरे को कि इसमें। और स्टेज 3 भी हम लोगों ने ऐसे ही किया स्टेज। और एक बात और बतानी थी मेरे को कि सच में आई थिंक मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा धक्का मेरे को लगाया गया है। जो मेरे को फील होता है मेरे को कि अभी नहीं, शुरू से ही, कि सम टाइम हो जाता है कि मैं अपने हथियार पकड़ कर ऐसे ही खड़ जाता हूँ कि रुक जाओ यहाँ पे। फिर आपका पास्टर डाइगो का धक्का लगाना कि चल चल चल, कहीं कहीं पता है वो होता है ना कि हम डोर में पैर फंसा लेते हैं, है ना, कि नहीं जाऊंगा। तो वो भी करके देखा मैंने कि वीडियोस में भी आपको मालूम है कि मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं किए मैंने, है ना, तो कुछ पे मैं बीमार था, नहीं हुए मेरे से। तो वो था कि इस पे इजी है जो मेरे को दिखा। जूम पे हम लोगों ने जब बहन भाइयों ने किया, हमको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं, समझ सब कुछ आता है। हम जो फुल वीडियो देखते हैं और सारे दिखते हैं कि सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर वो हमारा काम ही पेंडिंग हो जाता है। फिर हम लोग, हो सकता है कि मेरे ऊपर 7 वीडियो जाएंगी और मैं आगे वाली भी नहीं देखूंगा। मैं सोच लूंगा कि नहीं नहीं ऐसे, पर नहीं, जो अभी मेरे हाथ में क्या है कि मैं इस मंडे को आ सकता हूं। मैं अभी भी आपने बोला कि मीटिंग है, मैंने ओके मैंने स्टार्ट किया, तो शायद मैं आपको नाम ऐसे ही करता, मैं अपना फोन साइड पे रखकर वॉशरूम में चला जाता, तो ये मीटिंग मिस हो जाती, तो बहुत कुछ मिस हो जाता मेरा भी, है ना। तो ये है कि जूम मीटिंग्स में बहुत ज्यादा इजी है ये चीजें, ये वीडियोस देखना। बड़ी है छोटी है, मेरे को मालूम है कि मैंने अकेले में भी वीडियो देखी है मैंने, बहुत इजी वीडियो थी वो। आई थिंक 1 आवर से वो कम किया है, पर उसके मेरे से आंसर नहीं दे हुए। देखी भी है सारी, दिमाग अभी भी दिमाग में है, ठीक है, कि वो कैसे लीडर है, कैसा लीडर होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे उसने कैसे सम टाइम होता है कि कुछ लोग होते हैं चर्च में कि वो लोग हॉली चलते हैं, कुछ लोग तेज चलते हैं, लोगों का डिफरेंट थिंक होती है, लोगों का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है ना, वो सब कुछ दिमाग में, बट आंसर नहीं दे होते। यहाँ पे आंसर दे सकते हैं हम लोग इजीली। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अमेन अमेन। हाँ ये बात सही है, 1-2 आंसर का ही जवाब देना पड़ता है, लेकिन समझने का जो माहौल है वो जरूरी है कि पूरा टॉपिक को समझ जाने को। और एक बात आपने बोली कि उस टॉपिक मैंने सवाल नहीं पूछे, लेकिन डिलीवरी का टॉपिक था। यस यस। तो मैंने ऐसा ही सबको पूछा क्या क्या खास गलती, और मैंने देखा कि जो भी मेरे सवाल थे उसका जवाब उसी में सब ने दिया एक्चुअली। यस। हाँ, तो कभी कभी मिक्सिंग करेंगे। तो अच्छी बात है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे जा रहा है। एक सवाल है, स्टेज 4 कर रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन महसूस क्या हो रहा है, फीलिंग्स क्या आ रही है इस स्टेज 4 के दौरान? सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मन में क्या सोच आ रही है, ये सब करके इधर से हम किधर जा रहे हैं, या कुछ कुछ दिल में क्या क्या हार्ट बीट क्या है स्टेज 4 को लेके? क्योंकि स्टेज 4 एंड नहीं है, जब स्टेज 4 हो खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब फिर सोने को नहीं जाएंगे हम ना। तो क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, अगर किसी को ऐसा ये हो रहा है कि आप लोग तड़प रहे हैं कुछ, हाँ स्टेज 4 हो जाएगी तो फिर, और कुछ किसी को कुछ फीलिंग्स आ रही है? मेरे को पास्टर जी के अभी भी है कि काम करना है, खुदा के लिए काम करना है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं, आपने जैसे आपने रिकॉर्डिंग वेडनेसडे से मैं अपने रिकॉर्डिंग भेजा आपने कि स्टेज 4 के लोगों का ऐसे कि रॉन्ग मत समझ लेना, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो क्या है कि
एवेंजलिज्म के लिए जाना जो मेरे हिसाब से मेरे लिए है, वो जस्ट मेरा ये नहीं है कि मैंने अपनी जो हाजिरी लगवाना है, मैंने अटेंडेंस कि भैया मेरी अभी 3 है, रवीना की 5 है, तो मेरे को 5 करनी है मेरे को, ठीक है, सही है, कि मैं सही है। जाऊंगा बाहर घूमूंगा ऐसे करके नहीं, मेरे को खुदा के लिए जाना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस आप लगाओ नहीं लगाओ, पर मेरे को जाना कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। खुदा मेरे को कुछ दे रहा है तो खुदा को देना मेरा फर्ज बनता है। वो खुदा का लास्ट था कि जाओ और सबको बताओ, वो लास्ट वाला मैंने पकड़ा, तो भी मैं जा रहा हूं और बता रहा हूं, इसको खुदा बलवंत करेगा। खुदा इसमें जो 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 मैं अपनी मेहनत करता हूं, मैं उस पे खुदा फल लेकर आएगा। और इसी बात पे एक ब्रदर ने मेरे को कॉल किया, तो मेरे किसी फ्रेंड ने उसको नंबर दिया, मसीह बंदा है, उसने मेरे को बोला कि भैया मैंने आपको लिद्रा पे देखा था, मैंने आपको, और मैं मसीह में हूँ भैया, मेरे को ना प्रार्थना करवानी है मेरे को ऐसे से। उसने मेरे से बात की मेरे से, कि मैंने कहा भैया पर आपने मेरे को वहां पे, वो बोला कि मेरे फ्रेंड साथ में थे इसलिए मेरे को आपसे बात नहीं हुई। फिर मैंने, मेरे को फ्रेंड है सतनाम, राज पास्टर जी, राज से उसने नंबर लिया मेरा, तो फिर उसने मेरे को कॉल किया, उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताई। फिर जो मैंने सीखा था, वो मैंने बाइबल सीखा था, मैंने वीडियो से, जो मैं चर्च में सीखा मैंने, तो उसको मैंने बताया, तो वो मेरे साथ जुड़ा। तो मैंने उसको बताया कि ब्रदर आप संडे मेरे साथ चलो, हो सकता है खुदा करेगा उसको। वो बोला कि मेरा काम 16-17 घंटे होता है, तो भैया मैं कोशिश करूंगा कि मैं संडे को रेस्ट लूं और मैं आपके साथ चलूं। खुदा करेगा, क्योंकि खुदा ने उसको मेरे साथ जोड़ा है, तो खुदा ये भी करेगा कि उसको लेकर भी आएगा चर्च में। हाँ, उसने पहली बात की, उसने मेरे को लिद्रा पे देखा, उसने मेरे को पहली बात। अच्छी बात। हाँ, उसका नंबर ले लो, फिर हम उसको बड़े ग्रुप मेरे में पास डाल नंबर है, सकते बस मैं बात करता हूँ उसके साथ। हाँ, मेल मिलाप में विनती करो आने को, फेसबुक मीटिंग, ये सब आपको तो पता है मकसद का बारे में सब करूंगा बस जी, तभी अभी 2-3 दिन हुए उससे बात करते हुए, थोड़ा सा अच्छी उसको मैं करूंगा। हाँ, रेडी करो उसको जो नेक्स्ट बस स्टेप एक के मिनट, लिए। सबको आप लोगों को पता है अभी। हाँ, और कोई कुछ हो रहा है दिल में, तड़प, चाहत? ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕਿਤੇ हेलो जी सिस्टर जी, सिस्टर जी आवाज आ आवाज। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਦਿਨ ਪੜਿਆ ਵੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵੈਂਜਨੈਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। आमीन। हमने तो अभी तक नहीं चालू किया है, लेकिन देखेंगे कैसा इवेंजलिज्म। हाँ, चालू नहीं किया पर सोच रहे हैं, ऐसा कहा था। पर हाँ, मुझे ये हुआ कि मैं इसमें जा सकती हूँ। चलो चलो, तो बातें करेंगे इस गल पे फ्रंट टीम के साथ, देखते हैं कैसा माहौल बनाएंगे जो जा सकते हैं चर्च के बाद भी। अच्छी बात है। और कोई मोरे जा रहे हैं हम। हाँ जी सर। तो जैसे आपने बोला कुछ हो रहा है अंदर, तो हो तो रहा है, परमेश्वर ने हमें बचाया है और यही है, हमें भी औरों को बचाना है। और सिस्टर अबन मट्टू हमेशा मुझे एक बात बोलती है कि बाइबल में लिखा है कि एक यहूदी दा पल्ला 10 जने फड़नगे, मतलब एक पर्सन दसानो परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਾਦ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡਾਂ,
ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਚੀ ਆ, ਮੈਂ होरां ਨੂੰ भी बचा सकूं। थैंक यू। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात। और कोई? पास्टर जी मैं भी कहना चाहूंगी, जैसे हम इवेंजलिज्म के दौरान जाते हैं, पहली बार तो मैं लेट हो जाती हूँ 10 मिनट, एवरी संडे मैं लेट हो जाती हूँ, बट मैं टाइम पर पहुंच जाती हूँ जब हमारे ब्रदर सिस्टर स्टार्ट करते हैं। बट पास्टर जी जब से हम जा रहे हैं इवेंजलिज्म में, तो मैंने ये नोटिस किया है, जैसे हम बहुत से बहन सिस्टर मिलते हैं, हम बात करते हैं, उनके नंबर भी हमने लिए, हमने लिस्ट भी बनाया, हमने एफर्ट्स भी लाई, उनको कॉल भी किया। तो पास्टर जी कभी-कभी मन में आता है हम जैसे बच्चे हैं वो भी बचाए जाएं। हम एफर्ट्स तो बहुत लाते हैं, सभी नंबर दे भी देते हैं तकरीबन, बट जब हम बात करते हैं बहुत उत्साहपन दिखता है हमें उनसे बात करने के दौरान। बहुत खुश भी होते हैं, हम टेस्टमनी भी शेयर करते हैं। जब हम घर आकर उनको फ़ोन कॉल करते हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो हमारा मन भी बहुत दुखता है। हम उनको 4 पर्सन थे में गीता फ्रोजन हो गई है। प्रेज द लॉर्ड गीता। गीता हाँ समझ आई बात, थोड़ी सी कट हो गई। इवेंजलिज्म जो मिनिस्ट्री है वो आसान मिनिस्ट्री नहीं है, सबसे टफ मिनिस्ट्री है वो, टफ मिनिस्ट्री। जी बात और बहुत जोर डालना पड़ता है, प्रार्थना की लोड बहुत जी होती है जी हम मिनिस्ट्री। प्रार्थना भी करते हैं, जब हम कॉल करते हैं उनको प्रार्थना भी वो लोग लेते हैं, बट पता नहीं क्या होता है सडनली, जैसे उनके फ्रेंड होते हैं जो मुस्लिम वो उनको बढ़ने नहीं देते। तो आप डिस्करेज मत हो जाओ, जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू करने का। अभी मुझे 25 साल के ऊपर हो गए हैं, मैं इवेंजलिज्म कर रहा हूँ, तो ये मेरा लाइफ का हिस्सा है। ऊपर नीचे कभी कभी लगता है कोई नहीं बच रहा है, कोई नहीं, लेकिन फिर फल भी आता है। तो लेकिन हम हमारी निगाह खुदा पे होगी कि खुदा बचाएगा और आगे जाएंगे, हम करते जाएंगे जो भी। अगर हमें फल नहीं दिखाई दे रहा है आंखों से, बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होता है बैकग्राउंड में, और ये गवाहियां कभी हमें इस दुनिया में नहीं सुनने को मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी। जो भी आप लोग वचन उनको बांटते हैं, वो फिर उनका लाइफ में कभी ना कभी खुदा करेगा काम। हो सकता है चर्च में नहीं आएंगे, हो सकता है आपको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जो बीज जो बोया जाता है वो पक्का खुदा पानी डालेगा और बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, जैसे खुदा का कलाम कहता है। सही है, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। हाँ, तो स्टेज 4 का जो मैंने लिस्ट भेजा है, अगर आप लोगों ने आपका नाम देखा होगा तो प्लीज कोशिश करो, अगर उस संडे नहीं जा सकते तो फिर और संडे पकड़ के जाने को। रवीना अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखती है, तो किसी को वो नहीं छोड़ेगी। ओके। फेसबुक का फीडबैक प्लीज हमें तंग मत करो, आपको रिमाइंडर देने को कि किया है नहीं किया है करके। जब आप करेंगे फेसबुक का फीडबैक, तो उधर मैसेज डालो कि किया है करके, ताकि फिर सबको, हम एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करने की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी करो। मेल मिलाप में आपका अटेंडेंस अच्छा है। अगर आपको मेल मिलाप मिस हो जाएगा, आप कभी किसी चीज को लेके नहीं आ सकेंगे, तो हमें चाहिए कि आप फीडबैक देगा। अगर आप मीटिंग में होंगे तो मेल मिलाप का फीडबैक की लोड नहीं है, लेकिन अगर आपको देने का है, जैसे ब्रदर बख्शीश देता है, सिस्टर रवीना देती है, कभी सिस्टर कमलजीत भी देती है, आपकी मर्जी। तो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है मेल मिलाप का मीटिंग का फीडबैक। ओके। वचन प्लीज मत कॉम्प्रोमाइज करो, समझौता मत करो वचन को लेके, प्रार्थना को लेके, या आपका वर्शिप टाइम को लेके। ये जरूरी है। ये ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड पता है ना, ट्राइपॉड, ये जरूरी है। 3 हिस्से होते हैं ट्राइपॉड के, खांबे, पिलर्स, वचन, प्रार्थना और खुदा के साथ वर्शिप टाइम, ये जरूरी है।
कैसे ना कैसे टाइम निकाल के करने का। कोई बाइबल प्लानर कर रहे हैं साल में, कोई कोई कर रहा है वो जो? जी पास्टर जी, अच्छी मैंने बात, जो आपने भेजा है यार वो पढ़ती हूँ, पुराना अच्छी न्यू बात। जो तो डिटेल वाइज है। राजवीर, इसको आपको एक चॉकलेट खरीदना पड़ेगा, देने को, बड़ी चॉकलेट। अच्छी अभी बात है। करें पास, सबको मिलेगी पास्टर जी, अभी करें। हाँ मैं भी करती हूँ, मेरे लिए भी चॉकलेट चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, आपको लग रहा है कि जैसे आप लोग स्टेज 4 कर रहे हैं कि आपका हिस्सा चर्च में ज्यादा जिम्मेवारी का जैसा आप ओनरशिप ले रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है? या चलो स्टेज 4 तो शाम को होती है, संडे का जो, और या पूरी चर्च को लेके आप लोगों को लग रहा है कि आप ज्यादा जिम्मेवार जैसे हो रहे हैं? ये जी जरूरी है, पास्टर जी, ये जी जरूरी पास्टर जी है। पास्टर जी, पास्टर ਪਾਸਟਰ जी। ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ 4 ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। एकरा पासी बड़ी कमाल की बात है कि जब हम लोग चर्च में आप थे तो आपकी बातें भैया कमाल के होते हैं, और क्या होते हैं? सच में, क्योंकि ना पहले ना सभी लोग रॉन्ग लगते थे कि ये सही नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा। जब से स्टेज 4 करने लगे हैं तो वो अपने आप को देखते रहते हैं, यार मैं यहाँ पे भी रॉन्ग हूँ, यार मैं यहाँ पे भी रॉन्ग हूँ। चलो सीख रहे हैं हम। हाँ, yes you can go. You want to say hi to my friends here? Look, these are all my Punjabi friends. Look, they Hi, can't hear, or they can hear you. how are Say you? say hi Punjabi friends. Hi, Punjabi friends. Tell them you can Hi. dance balle balle. Tell them. Hi Ruben, bale bale. हाय मिनी जॉनी फर्नांडिस। उसका डांस देखा होगा आपने फेसबुक पे, बल्ले बल्ले। जी पासी, जी 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 जी। मैं भेजूंगा आपको, नहीं तो चलो। क्या था मेरा मन में? हाँ, किसी ने बताया कि ये टॉपिक्स ऑफ कोर्स पावरफुल है, लाइफ लाइफ चेंजिंग है, ऐसा नहीं लगता है ना? ये जो स्टेज 4 कर रहे हैं आप लोग, हमारा स्टेज 4 मैंने बताया है कि ये हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बात ज्यादा होती है इस टॉपिक्स के दौरान। जी पास्टर जी, हाँ, बदल अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बदलावा, हाँ, हाँ, क्योंकि अगर ਹਾਂਜੀ। इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, लेकिन जैसे टॉपिक जो बनाया है हमने, कोशिश की है कि ये ज्यादा वचन पे ज्यादा 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 लोड, सॉरी लोड नहीं, ज्यादा Concentrate जोर करनी है। जोर नहीं डाला हमने, क्योंकि जी। हम अगर आपको वचन अगर ज्यादा बांटेंगे और बदलावा उससे नहीं आएगा तो फिर क्या काम, क्या फायदा ना? जी, तो इसलिए हम जी। हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। गवाहियाँ, मेरा टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा गवाहियाँ का होता है। मेरा 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 टॉपिक्स आपने लोगों ने नोटिस किया होगा। तो जी। ये आपकी मैरिड लाइफ पर असर पड़ेगा। जो फ्यूचर, जो शादी करने का जो लोग हैं, उनको ये हेल्प होगा, ये लीडरशिप स्टेज 4। काम को लेके आपको, आपका काम जिधर कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ, वो भी आपका आपको फायदा होगा। जी। रिश्ते पे, डैडी मम्मी ब्रदर सिस्टर चर्च के लोगों के साथ रिश्ते सही रखने का भी ये सब माहौल, ये बड़ा एक बड़ा ये है, ये बड़ा पिक्चर है, ये छोटा जी ये नहीं पास्टर है। जी, सही ਨਹੀਂ सही ਮੇਰੀ ना? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। हाँ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इस तो बार मैंने बहुत फायदा हुआ है। हाँ, ये लीडरशिप इज लाइफ चेंजिंग। ये सिर्फ जी पास्टर ये सिर्फ चर्च की सेवा करने का ही मकसद नहीं, ये बड़ा 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 मॉल है ये लीडरशिप का। तो